Hi friends, welcome back to my channel Only Bio. Presenting the chapter Reproduction in Organisms from the NCERT textbook for Standard 12. So in this series, I'm going to not only read out the chapter but also explain you word to word so that you don't have to physically pick the book and keep on reading. I shall be also telling you the important points and how the questions can be framed in between. So please stay tuned till the end. So we are going to deal with Unit 6, that is reproduction, wherein there are 4 chapters involved, of which the first chapter is reproduction in organisms, second is sexual reproduction in flowering plants, third is human reproduction, and fourth is reproductive health. So we are starting up with Unit 6, Chapter 1. So friends, this is how the chapter begins within your NCERT book. That is chapter 1, reproduction in organisms. Each and every organism can live only for a certain period of time. चाहे वो बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, एनिमल हो, हर एक जीव जो है वो एक डेफिनेट एक सर्टेन वक्त के लिए जी लेता है. The period from birth to the natural death of an organism represents its lifespan. जो लाइफ स्पैन है ऑर्गेनिज्म का उसे डिफाइन करने हम जाए तो वो क्या होगा. पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ. अब यहाँ नेचुरल डेथ लिखा हुआ ये आपने समझना है. कभी अगर किसी का मर्डर हो गया या कोई एक्सीडेंट में गुजर गया तो वो नेचुरल डेथ नहीं कहा जाता. राइट. सो ये जो पीरियड है पैदा होने से नेचुरल डेथ या नेचुरल मृत्यु जो होती है तब तक का इसे कहा जाता है लाइफ स्पैन. Lifespans of few organisms are given in the figure 1.1. Several other organisms are drawn for which you should find out their lifespans and write in the spaces provided. जब आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में फिगर 1.1 वहां पर आप देखोगे कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के नीचे एक खाली जगह आपको दिखाई देगी जहां पर हमने वो उनका लाइफ स्पैन वहां पर लिखना है. Examine the lifespans of organisms represented in the figure 1.1. Isn't it both interesting and intriguing to note that it may be as short as few days or as long as a few thousand years? यानी जब हम फिगर 1.1 पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें ये इंटरेस्टिंग भी लगेगा और हम अचंभित भी रहेंगे, इंट्रिग्ड हो जाएंगे कि इतने सारे वेरिएशंस इसमें लाइफ स्पैन में दिखाई देते हैं. कोई ऑर्गेनिज्म सिर्फ चंद दिनों के लिए जीता है तो कोई कोई हजारों साल जी लेते हैं. So friends, this is the diagram or the picture that has been taken from your NCERT textbook, that is figure 1.1. आप यहाँ देख सकते हैं कि कोई कोई ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन नीचे दिया हुआ है तो कहीं कहीं पर ब्लैंक है जो हमने भरना है. So let's understand this one by one. The lifespan of an elephant is 60 to 70 years. The lifespan of a rose plant is 35 years. The lifespan of a dog is 10 to 13 years. Lifespan of a butterfly is 1 to 2 weeks. Lifespan of a crow is 15 years. Lifespan of a banana tree is 25 years. Lifespan of a cow is 15 to 25 years. Lifespan of a parrot is 140 years. Lifespan of a crocodile is 60 years. Lifespan of a horse is 25 to 30 years. Lifespan of a fruit fly is 40 to 50 days. Friends, फ्रूट फ्लाई यानी कि ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर जो आप पढ़ोगे मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट में या जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में ज़्यादातर ड्रोसोफिला इस्तेमाल किया गया था. सो ड्रोसोफिला ये अपने टेक्स्ट बुक में बहुत बार आने की वजह से ये खास करके ध्यान रखिएगा कि इसका लाइफ स्पैन जो है 40 to 50 डेज का है. अब आप बोलोगे ये सब हम याद रखना है या नहीं रखना है आपने. तो यस, आपने ये सब याद रखना है और याद रखने का एक आसान तरीका ये हो सकता है कि आप 2 कॉलम्स बनाइएगा. एक जगह पे ऑर्गेनिज्म का नाम और उसके आगे उसका लाइफ स्पैन. शायद कभी
नीट के क्वेश्चन बैंक में या एमसीक्यूज में मैच द फॉलोइंग के तौर पे ये आ सकता है. Lifespan of a rice plant is 3 to 7 months. Lifespan of a tortoise is 100 to 150 years. Lifespan of a banyan tree is 250 years. अब देखना ये approximate lifespan है. ओके, ये कहीं पर भी थोड़ा बहुत प्लस माइनस इसमें हो सकता है. Isn't it both interesting and intriguing to note that it may be as short as a few days or as long as a few thousand years? यानी ये हमें सरप्राइज करने वाली बात है कि कोई कोई ऑर्गेनिजम्स चंद दिनों के लिए जी लेते हैं तो कोई कोई थाउजेंड्स ऑफ इयर्स के लिए भी जी लेते हैं. Between these two extremes are the lifespans of most other living organisms. यानी इन दो जो एक्सट्रीम लाइफ स्पैन है, कोई चंद दिनों का तो कोई हजारों सालों का, इन दोनों के रेंज में बहुत सारे बाकी के ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन्स बीच में आते हुए दिखते हैं. You may note that lifespans of organisms are not necessarily correlated with their sizes. The sizes of crows and parrots are not very different, yet their lifespans show a wide difference. यानी आपने यहाँ पर ये जान लेना है कि ऑर्गेनिजम्स का जो साइज है उसका और उनके लाइफ स्पैन का कोई भी लेना देना नहीं है, रिलेशन नहीं है. एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर दिया हुआ है क्रो, कौवा एंड पैरट. ये दोनों पंछियों का साइज मोर और लेस सेम है, पर उनके लाइफ स्पैन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है. क्रो करीबन 15 साल तक जीता है तो पैरट करीबन 140 साल तक जी लेता है. Similarly, a mango tree has a much shorter lifespan as compared to a peepal tree. अब अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में यहाँ पर लाइफ स्पैन दिया हुआ नहीं है, जो मैंने ब्रैकेट्स में डाल दिया है. मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन होता है करीबन 100 से 150 साल और पीपल ट्री का लाइफ स्पैन होता है 1000 से 2000 साल. ये अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ नहीं है, पर मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है. Whatever be the lifespan, death of every individual organism is a certainty. That is, no individual is immortal except single-celled organisms. यानी ऑर्गेनिज्म का चाहे कितना भी लाइफ स्पैन हो, उम्र हो, बट जो मृत्यु जो होती है वो मृत्यु अटल है. कोई भी अमर नहीं होता एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. अब आपके दिमाग में यहाँ पर आ सकता है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स अमर क्यों है, इमॉर्टल क्यों है. रीजन काफी सिंपल है. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में जब सेल डिवीजन होता है वही उनमें रिप्रोडक्शन का तरीका है, जहाँ पर एक सेल से दो सेल्स बन जाते हैं. तो पुराना वाला जो सेल है उसी का दो सेल्स में बंटवारा हो जाता है ग्रोथ होने के बाद. इसीलिए यानी कि पुराना जो सेल है वो शायद कभी मरता ही नहीं, इसीलिए इसे इमॉर्टल कहा जाता है. Why do we say that there is no natural death in single-celled organisms? इसीलिए ये कहा जाता है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की मृत्यु नहीं होती. Given this reality, have you ever wondered how vast number of plants and animal species have existed on Earth for several thousands of years? क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये प्लांट्स है, ये एनिमल्स है जो पृथ्वी पे इतने सालों से, इतने हजारों सालों से मौजूद है, ये एक्चुअली कैसे मौजूद हो सकते हैं, ये कैसे रह रहे होंगे? There must be some processes in living organisms that ensure this continuity. Yes, we are talking about reproduction, something that we take for granted. यानी इन सब ऑर्गेनिजम्स को जीवित रहने के लिए या उनकी जो स्पीशीज है उन्हें कंटिन्यू करने के लिए एक ही प्रोसेस जो जिम्मेदार है वो है रिप्रोडक्शन, जिसकी वजह से प्रजनन की वजह से वो ऑर्गेनिजम्स आज भी लाइफ में या आज भी अर्थ पर, पृथ्वी पर दिखाई देते हैं. On the right hand side, you can see the picture of the textbook itself. That page is now going to be discussed. Reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones, that is offspring, similar to itself. सो ये रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन है जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को
जन्म देता है जो अपने जैसा ही होता है, सिमिलर होता है। अब प्लीज यहाँ पर याद रखिएगा कि आप गिव्स बर्थ टू यंग वंस ये नहीं कहेंगे, आप कहेंगे गिव्स राइज टू यंग वंस, क्योंकि एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स ये यंग वंस को पैदा नहीं करते, but they lay eggs. That is, I'm talking about oviparous organisms. They also reproduce, but they are not giving birth to a young one. So जब आप gives birth कहोगे तो वहां पर सिर्फ रेफरेंस जाएगा viviparous animals की तरफ, जबकि oviparous animals भी reproduce करते हैं, इसीलिए आपने gives rise to young ones कहना बहुत ज्यादा परफेक्ट होगा। The offsprings grow, mature and in turn produce new offsprings. मतलब जो भी नए ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं वो बढ़ते हैं, मेच्योर होते हैं और फिर जाकर वो भी रिप्रोड्यूस होंगे, उनका भी प्रजनन होगा और वो एक नए ऑर्गेनिज्म को पैदा करेंगे। Thus there is a cycle of birth, growth and death. यानी कि लाइफ साइकिल में पहला जो इवेंट्स है वो है बर्थ, दैट इज हम पैदा होते हैं, फिर हम ग्रो होते हैं और फिर मृत्यु हो जाती है। Reproduction enables the continuity of the species, generation after generation. So reproduction की वजह से क्या होता है, वो जो प्रजाति होती है, जाति होती है, ये आगे कंटिन्यू होगी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ियों तक। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो, या तो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी किसी ऑर्गेनिज्म का कम हुआ तो धीरे धीरे इन ऑर्गेनिजम्स की जो संख्या है ये कम होती जाएगी और एक ऐसा भी वक्त आ सकता है कि प्रजनन रिप्रोडक्शन ना होने की वजह से वो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्सटिंक्ट भी हो सकता है, वो पूरी तरह से गायब हो सकता है इकोसिस्टम से। You will study later in chapter number 5, Principles of Inheritance and Variation, how genetic variation is created and inherited during reproduction. इन्हें 5वें चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो वेरिएशंस है यानी कि डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस क्यों होते हैं और ये आगे जाकर आगे पीढ़ियों में कैसे हस्तांतरित किए जाते हैं। There is a large diversity in the biological world and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring. यानी हम सृष्टि में देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी है पूरी जैविक दुनिया में और हर एक ऑर्गेनिज्म कुछ अपने ही ढंग से उत्क्रांतित हुआ है और उसने प्रजनन भी किया है और एक नए पीढ़ियों को पैदा किया है और इसीलिए हम देखते हैं कि आज भी वो ऑर्गेनिजम्स दुनिया में दिखते हैं। The organism's habitat, its internal physiology, and several other factors are collectively responsible for how it reproduces. यानी कोई भी जीव जो है वो कैसे प्रजनन करता है ये मेनली दो फैक्टर्स पर निर्भर है, एक उसके रहने की जगह यानी कि हैबिटेट और उसके इंटरनल फिजियोलॉजी यानी उसके बॉडी में होने वाले जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस है, जो भी important chemical reactions है वो। Based on whether there is participation of one organism or two in the process of reproduction, it is of two types. इन्हें प्रजनन जो है, reproduction जो है, वो दो तरीकों का है। ये दो तरीके इस पर निर्भर है कि उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में एक जीव मौजूद है या दो जीव मौजूद है। When offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual. इन्हें जब नया ऑर्गेनिज्म या नई पीढ़ी पैदा होती है एक ही पेरेंट से यानी एक ही ऑर्गेनिज्म से गैमीट का फ्यूजन ना होते हुए, तब उस पर्टिकुलर प्रजनन या उस रिप्रोडक्शन को कहा जाता है असेक्सुअल। असेक्सुअल यानी विदाउट सेक्स, सेक्स यानी कि फ्यूजन, गैमीट का फ्यूजन। When two parents of the opposite sex participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gametes, it is called as sexual reproduction. जब दो पेरेंट्स हो, that is माता पिता, opposite sex यानी कि माता पिता, जब वो पार्टिसिपेट करते रिप्रोडक्शन प्रोसेस में और जब वहाँ पर जो गैमीट सेल यानी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है, जो प्रजनन करने वाली जो कोशिकाएं हैं, इनका फ्यूजन होता है, इनका मिलन होता है और तब जाके नया जीव उत्पत्तित होता है, तो उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
Let's now talk about asexual reproduction. In this method, a single individual or parent is capable of producing an offspring. यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल जीव काफी होता है नए ऑर्गेनिज्म को, नई पीढ़ी को पैदा करने के लिए. As a result, the offsprings that are produced are not only identical to one another but are also exact copies of their parents. यानी क्या कि यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही ऑर्गेनिज्म या एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होने की वजह से जो भी ऑर्गेनिजम्स या जो भी ऑफस्प्रिंग्स इनसे बनते हैं वो ना कि एक दूसरे जैसे एग्जैक्ट आइडेंटिकल होते हैं बट वो अपने पेरेंट के भी एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं. Are these offsprings likely to be genetically identical or different? अब ये जेनेटिकली इनके जो जनुक है उनके हिसाब से ये आइडेंटिकल है या ये अलग है. तो डेफिनेटली ये आइडेंटिकल ही होंगे क्योंकि सेम जीनोटाइप आगे वाली पीढ़ी में चला गया है. इनमें वेरिएशन यानी कि बदल होने की संभावना नहीं है. The term clone is used to describe such morphologically and genetically similar individuals. यानी जब मॉर्फोलॉजिकली यानी स्ट्रक्चर वाइज जब ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल्स एक दूसरे जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, और जेनेटिकली यानी उनके जो जीन्स है, जनुक है, उनके हिसाब से भी जब वो आइडेंटिकल होते हैं तब ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्लोन ऐसे कहा जाता है. Let us see how widespread asexual reproduction is among different groups of organisms. तो हम यहाँ देखेंगे कि अलग अलग ग्रुप्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस हद तक दिखाई देता है.